Hello students, have a nice day, and I think you all are doing well and doing a study at home. So here you can see this is the video of class 10th biology, and I'm going to start chapter 3 from biology. And you know that the name of this chapter is how do organisms reproduce. Okay, so basically this chapter is about reproduction in plants as well as in animals. So before starting this chapter, in this video I'm going to talk about the some basic concept of the reproduction, and by solving some multiple choice questions I want to know that what do you know about reproduction. So basically we will just remind and revive our previous knowledge about this chapter. Okay, so before starting this chapter, let's discuss some basic concept and let's check our previous knowledge. So let's start. The first question of this video is reproduction is a process of. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताने कि रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस को हम कहते हैं. दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड आई होप कि आप लोगों ने पहले भी इसे पढ़ा होगा इन क्लास 8th. So it's very easy. Let's see what are the options. The option A is saying removal of waste from body, B is saying breakdown of complex substance into their simple form, and C is saying producing young ones, and D is saying none of the above. So you have to choose the correct one. Reproduction एक ऐसा process है that is shown by all the living organisms, and इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड टू मेंटेन देयर रेस. ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अपनी रेस को मेंटेन करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने ही तरीके का क्या करता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर, प्रोड्यूसिंग यंग वंस. ठीक है, सो आई होप ये आप ऑलरेडी जानते होंगे एंड इट विल रिवाइज योर मेमोरी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन. रिप्रोडक्शन का ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक लाइफ प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओनली इन ह्यूमंस, ओनली इन एनिमल्स. सो यू हैव टू चूज़ कि रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं. Okay, so all living organisms, some living organism, only in human, only in animal. तो वेरी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड यू मस्ट नो दैट रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हर एक दुनिया का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को, अपनी रेस को मेंटेन करता है ना. तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म द रिप्रोडक्शन टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन, है ना. अपने ही जैसे वो लिविंग, अपने ही जैसे यंग वंस को, बेबीज़ को वो प्रोड्यूस करते हैं और अपनी रेस को, अपनी पॉपुलेशन को वो मेंटेन करते हैं. सो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस, एवरीवेयर, in every kind of species. Okay, next question is mainly how many types of reproduction takes place in living organisms. तो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली कितने टाइप में डिवाइड किया गया है. सो ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 5. कैन यू गेस? यू हैव 5 seconds. Okay, you know that the reproduction is mainly divided into 2 types. What are these? Asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction. You know that. Okay, so option A will be correct, right? Option A will be correct. Asexual reproduction and sexual reproduction. और asexual reproduction में आप जानते हैं कि only one इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है. इसमें 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली एक इंडिविजुअल से ही नए यंग वंस प्रोड्यूस हो जाते हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इट नीड्स 2 इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल, एंड मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट एंड फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, एंड बोथ द गैमेट्स फ्यूज टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड देन zygote is formed, and then this zygote develop into embryo, then embryo develops into baby. So sexual reproduction involves 2 individuals together.
okay? And asexual reproduction involves only one individual, and generally it takes place in the lower category of organisms. So here you will tick down the option A. Now the next question is asexual reproduction involves, asexual reproduction involve करता है. अभी हम लोगों ने बात की, ऑप्शन देख लेते हैं. 2 individuals, only 1 individual, not certain, none of the above. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं आपको बताना है. अभी हम लोगों ने बात की थी 2 इंडिविजुअल, 1 इंडिविजुअल, कोई सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, या कोई भी नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओनली 1 इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व. ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल से नए बेबीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5. बडिंग इज अ टाइप ऑफ, बडिंग कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ. तो आई होप यू नो दैट बडिंग जो है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैन यू टेल मी दैट द एग्जाम्पल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन विच बडिंग टेक्स प्लेस? किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का आप नाम बता सकते हैं जिसमें जो है वो बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? यस, वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज़ हाइड्रा. ठीक है, हाइड्रा में आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि हाइड्रा जो होता है उसकी बॉडी में एक क्या होती है, एक आउट ग्रोथ बनती है इस तरीके से. ये हाइड्रा इस तरीके का कुछ होता है स्ट्रक्चर, और उसकी बॉडी में फिर इस तरीके से एक आउट ग्रोथ बनती है. फिर ये आउट ग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होकर हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो ये जो आउट ग्रोथ बनती है इसको हम बोलते हैं बड. ठीक है, और इस बड से फिर पूरा बॉडी तैयार हो जाती है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बडिंग. तो बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा एज वेल एज ईस्ट में भी होती है. ईस्ट में भी एक ये यूनिसेलुलर फंगस है, तो ईस्ट में भी होती है, और ये एक टाइप की क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ओके, राइट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Question number 6 is asking you gametes are formed in. Gametes कहाँ पे बनते हैं? कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दोनों में, इन बोथ. सो यू हैव टू गेस. जल्दी बताइए. गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. ठीक है, एक सिंगल सेल होती है. रिप्रोडक्शन में लेने वाली, पार्टिसिपेट करने वाली सेल को हम गैमेट बोलते हैं. जैसे ह्यूमंस में मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को हम ओवम बोलते हैं. दोनों फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर जाइगोट बनता है. जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर ह्यूमन बीइंग की बेबी बन जाता है. ओके, सो गैमेट्स कहाँ पे बनेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? ऑब्वियसली इट विल फॉर्म इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट both fuse together, they make the zygote, and then zygote develops into new baby. So the right option is option B. Let's move to the next question. Vegetative propagation is a kind of. Vegetative propagation कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप जानते होंगे, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. ये प्लांट्स में होता है. प्लांट्स में 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं. एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना. तो जो प्लांट का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलेंगे, और जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है उसको हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो पार्ट्स जो होते हैं उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, और वो पार्ट्स क्या करते हैं? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे कि जो आपके प्लांट की लीव्स होती हैं, ठीक है, स्टेम होता है या फिर रूट होती है, ठीक है, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड फ्रॉम दीज पार्ट्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस.
ओके जैसे आप स्टेम को, रोज़ के स्टेम को कट करके आप रोज़ का नया पौधा उगा सकते हैं। लीव्स, ब्रायोफिलम में लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। ऐसे ही रूट्स के थ्रू भी हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, रूट्स को कट करके फिर ग्रो करवा सकते हैं, जैसे जिंजर होता है, ठीक है। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रिप्रोडक्शन बाय लीव्स टेक्स प्लेस इन। रिप्रोडक्शन बाय लीव्स टेक्स प्लेस इन, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो उसके लीव्स के थ्रू होती है? योर ऑप्शंस आर रोज, हिबिस्कस, ब्रायोफिलम, मैरीगोल्ड। सो यू हैव टू चूज द राइट वन। रोज़ में क्या लीव्स के थ्रू रोज़ में रिप्रोडक्शन हो सकती है? क्या हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज़ में ऐसा हो सकता है? कैन यू गेस, कैन यू थिंक? एंड ब्रायोफिलम में क्या होता है? क्या लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है? या फिर मैरीगोल्ड? ओके, सो यू हैव टू चूज द राइट वन। ओके, ब्रायोफिलम will be the right answer because in ब्रायोफिलम the reproduction takes place by the leaves। आप जानते हैं कि उसकी इस तरीके से कुछ लीव्स होती है ब्रायोफिलम की, और ये ब्रायोफिलम की लीव्स में से फिर इस तरीके से छोटी छोटी लीव्स निकलती हैं और उसमें से इस तरीके से रूट्स निकलती हैं, राइट। इस तरीके इसकी मार्जिन्स पे छोटी छोटी लीव्स और उसमें से रूट्स निकलती हैं। अब ये लीव्स जो हैं, इस लीव्स पे ही इस तरीके से रूट्स और लीव्स निकलने लगते हैं, और ये जब ये डिटैच होकर फिर से नया ब्रायोफिलम बना लेती है। ओके, तो ब्रायोफिलम जो है वो एक तरीके का एक बहुत ही स्ट्रेंज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट है जिसमें रिप्रोडक्शन ऐसा जनरली नहीं होता है कि लीव्स के थ्रू प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जनरली नहीं होती है, बट दिस इज़ द प्लांट, इट शोज द रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, इट इज़ कॉल्ड ब्रायोफिलम। So that's all for this question. Next question is question number 9. Amoeba reproduces by, कुछ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि अमीबा कौन से मोड के थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकता है। बाइनरी फिशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, so you know that the amoeba mainly reproduces, it can reproduce by asexual as well as sexual method, but ये generally जो है वो asexual method यानी कि binary fission के थ्रू ये क्या करता है, reproduction करता है ना। binary fission में क्या होता है कि कोई सेल जो होती है वो इक्वली दो सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, इक्वल पोर्शंस दोनों में आ जाते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिशंस के थ्रू जो है वो सिंपली एक माइटोटिक डिवीज़न होता है जिसके थ्रू एक पेरेंट सेल दो न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाई का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है। एक सेल दो सेल में इक्वल सेल में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ओके, तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू यहाँ पर आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मीन्स ऑफ, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है आपको बताना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, नन ऑफ द अबव। प्लांट्स आपने देखे होंगे, तो प्लांट्स में आपको ये बताना है कि क्या कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। क्या उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, या फिर दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन दे कैन परफॉर्म, या फिर नन ऑफ द अबव, कुछ नहीं होता। सो कैन यू गेस? Yes, take time and think. I think this is very easy. You know very well that plants can reproduce asexual as well as sexual method. So your right option is option C. Plants perform reproduction by both the methods, asexual and sexual method. अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो कैसे, उनके थ्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स के थ्रू भी क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। एंड दैट रिप्रोडक्शन which takes place by the help of leaves, stem and roots, उनको हम क्या बोलेंगे, asexual रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होती है, डू यू नो? प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टैमेन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पेल होता है, ठीक है। स्टैमेन में मेल गैमेट बनता है
ओके। कार्पेल में फीमेल गैमेट बनता है, दोनों फ्यूज़ होते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू उनको एक दूसरे के पास पहुंचाया जाता है, दोनों फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ होकर फिर जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से जो है एम्ब्रियो बनता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो सुरक्षित रहता है और सीड के ऊपर फ्रूट बन जाता है ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्लावर के थ्रू होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो लीव्स, स्टेम और रूट्स के थ्रू होती है। सो प्लांट्स जो होते हैं वो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल एक लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल प्रोसेस फास्ट है एंड सिंपल है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अभी हम लोगों ने बात की थी प्लांट में कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं प्लांट में, क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर स्टेमन, स्टाइल, ओवरी, कार्पेल। सो यू हैव टू चूज द राइट वन। ठीक है, आप जानते हैं कि प्लांट के पास फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, वी कॉल इट स्टेमन, ओके। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, राइट। तो ये मेल हो गया और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है। एंड अगर आपको याद हो कि स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके ऊपर इस तरीके से क्या होता है, एक आउट ग्रोथ होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। इसी एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलेंस होते हैं और पॉलेंस के अंदर मेल गैमेट पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करें कार्पेल की, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, फिर उससे एक ट्यूब जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे क्या होती है, सोलन बेस होता है जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ठीक है, ओवरी। इसी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, जो ये लंबी सी पतली सी ट्यूब है, और सबसे ऊपर के पार्ट को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, है ना। पॉलन जो होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा में आता है, फिर ट्यूब बनाता है, फिर ये ओव्यूल के अंदर ओवन तक मेल गैमेट पहुँच जाता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट में, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, फीमेल गैमेट इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज। ह्यूमंस में फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ह्यूमंस में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, तो फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर स्पर्म, ओवम, जाइगोट, ओव्यूल। ओके, यू हैव टू टेल स्पर्म, ओवम, जाइगोट, ओव्यूल, कौन सा ऑप्शन सही है, यू हैव टू टेल इट। फीमेल गैमेट इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज ओवम, ठीक है, ओवम बोलते हैं, ओके। और स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट, दिस इज द मेल गैमेट एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन मेल बॉडी, एंड ओवम इज द फीमेल गैमेट, इट इज़ फॉर्म्ड इन द फीमेल बॉडी, क्योंकि ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, ओके। और ये दोनों जब फ्यूज़ करते हैं तो एक नया एक स्ट्रक्चर बनता है, एक सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, दोनों के फ्यूज़न से क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और ओव्यूल जो है वो क्या होता है, प्लांट का फीमेल गैमेट, प्लांट के फीमेल गैमेट को हम ओव्यूल बोलते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज जाइगोट इज। जाइगोट क्या है, जाइगोट क्या है, बार बार अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें ऑप्शन के थ्रू आपको बताना है कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है या डबल सेल स्ट्रक्चर है या मेनी सेल स्ट्रक्चर है। जाइगोट में एक सेल होता है या 2 सेल होता है, दो सेल होता है, या फिर बहुत सारे सेल होते हैं। तो देखिए जाइगोट आखिर में है क्या, देखिए जब मेल गैमेट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट, जब ये दोनों
और ये आप जानते हैं मेल गैमेट भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, फीमेल गैमेट भी क्या होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक एक सेल ही होती है। मेल गैमेट भी सिंगल सेल का बना होता है, फीमेल गैमेट भी सिंगल सेल का बना होता है। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो फ्यूज़ करने का मतलब होता है कि यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहे, जुड़ नहीं रहे, दे आर फ्यूजिंग, दे आर मर्जिंग कम्प्लीटली। तो दोनों जुड़कर एक सेल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी को हम लोग बोलेंगे जाइगोट। फिर इस जाइगोट में फर्दर सेल डिवीज़न होती है और एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, और एम्ब्रियो से फिर बेबी बन जाता है। तो आपको ये बताना है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ हुए तो और जाइगोट बना तो इसमें कितनी सेल हुई, यहाँ एक सेल थी, यहाँ एक सेल थी, तो जुड़ेगी तो 2 सेल बनेगी, लेकिन फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, इट इज़ अकरिंग फ्यूज़न। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब दोनों आपस में मर्ज हो गए, मिल गए, तो एक ही सेल बनती है, दोनों मिलकर एक ही सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाइगोट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर। हालांकि 2 सेल के फ्यूज़न से, 2 सेल के मिलने से बन रहा है, लेकिन ये दोनों सेल मिलकर एक ही सेल बन जाती हैं, दोनों सेल मिलकर आपस में एक ही सेल बन जाती है। सो इट विल बी कॉल्ड एज सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। सो जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, राइट। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो चेक हुआ होगा और आपको कुछ रिमाइंड हुआ होगा, वापस जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हुआ होगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल इन द study of the chapter. Okay, so thank you, have a nice day.